Now today we'll be starting with numerically greatest term. इसको हम लोग बोलते हैं NGT. The topic for today will be numerically greatest term. Now what do you understand by numerically greatest term? So if I take, say for example, तुमने कोई भी term ले लिया, say for example this is the numerically greatest term, TR+1. अब ये किससे बड़ा या इक्वल हो सकता है? इट्स नॉट जस्ट बड़ा, ये किससे बड़ा या इक्वल हो सकता है? तो ऑब्वियसली अगर TR+1 बड़ा है, TR+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. अब ये इससे बड़ा रह सकता है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली. दिस इज हाउ वी राइट इट. अब आई अंडरस्टैंड दैट मुझे TR+1 का वैल्यू पता है, NCR A⁻n−r B⁻r. बट when I'm solving this, how do we find numerically greatest term? अब देखो, r will be less than equal to n+1 upon 1 plus absolute value of mod a b. r is less than equal to n+1 upon 1 plus mod a b. So I have understood one thing ki at any given point of time there are four things required in binomial theorem: a, b, n, r. देखो, तो a, b, n, r at any given point of time, चार में से तीन टर्म दिया रहेगा, तीन चीज़ें दी रहेंगी. आई हैव टू फॉर्म द लास्ट टर्म. अब अगर इसको मैंने बीच में लिख दिया तो द टर्म बिफोर दैट, तो r+1 विल बी नथिंग बट ये सेम थिंग लिखेंगे, सेम थिंग -1. तो ये एक चीज़ फाइंड आउट करो, इसको -1 कर देंगे तो एक टर्म कम हो जाएगा. इसको अगर नॉर्मल लिखेंगे तो दिस इज द रिलेशन. तो किसी ने बोला r+1, द r का फॉर्मूला इज n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ab. एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, विल डू अ सम ऑन दिस. एंड r-1 विल बी नथिंग बट ये r का वैल्यू लिख दिया और -1 लिख दिया. सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दे विल आस्क यू समथिंग लाइक दिस. So my question will become numerically greatest term in 1 plus 4x raised to 8 when x is equal to 1/3. x का भी वैल्यू दिया होगा, बिकॉज मुझे r फाइंड आउट करना है, तो उसमें x का कोई भी काम नहीं रहेगा. In this sum I know that a is 1, b is 4x, n is 8. अब मुझे r निकालना है, तो they have given a, b, n सब दिया है. So I will start with using the formula less than equal to, मतलब we'll take it as equal to r is equal to n+1 upon 1 plus absolute value of a upon b. Now for your convenience, अगर तुमको a upon b अलग से निकालना है, you can do that. So अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं कि a अपॉन b विल बिकम नथिंग बट a इज़ 1, b इज़ 4x. गाइज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 1/3. 1 अपॉन 4 इंटू 1/3 विच विल बिकम 3/4. सो इसका वैल्यू हो गया 3/4. नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, देखो, सो r विल बिकम, n इज़ 8, 8 plus 1 upon 1 plus 3/4. So r will become 9 upon 4 plus 3. 4 plus 3 divided by 4. R will become 36/7. And 36/7 will become, say for example, let us take it as 5.1. Let us take it as 5.1. तुम लोग को और 5.11 में कुछ रहना है, बट मुझे तो बोला गया था कि r should be a natural whole number. r should be a whole number. r can be 0 also. r should be a whole number. चलो नो प्रॉब्लम. अभी तो r का वैल्यू है, तो r-1, देखो, therefore r-1 will become 5.1 minus 1 which is 4.1. अब ऑब्वियसली दोनों के बीच में लाई करेगा,
So I will write this as, therefore 4.1 less than equal to r less than equal to 5.1. Can any of you tell me, is there any integer between 4.1 and 5.1? So therefore I will write r as 5, क्योंकि we always look for integer, positive integer, but r का value 5 हो गया. So now when I have r का value 5, I have to find the numerically greatest term, that is the formula is tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Now I have all the values. I have a, I have b, I have n, and I have r. So my formula will become 8c5. A is 1. 1 raised to 8 minus 5, 4x raised to 5, which will become 8c5 into 4x raised to 5. This is your numerically greatest term. Has everybody understood this? ये फॉर्मूला है, तुमको सिर्फ r निकालना है, -1 करो, that will be lying between those two values. So this is your numerically greatest term. And last way, since you have all the values, use the general form, that is ncr a raised to n minus r b raised to r. Has everybody understood this? So दिया रहेगा, what is the numerically greatest term? NGT. If I take एक और क्वेश्चन ले लो, चलो, find the numerically greatest term. क्वेश्चन है 3 minus 2x raised to 9 where x is equal to 1. x is equal to 1 दिए. सबसे पहले तो मैं निकालूंगा r is equal to n plus 1 upon 1 plus mod a b. तुमको चाहिए तो mod a b अलग से करो, एक काम करते हैं इसमें ना साथ में कर लेते हैं. So r is equal to 9 plus 1 upon 1 plus, can anyone tell me what is a का value? 3. What is b का value? -2. What is x का value? 1. ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया. So r will become 10 upon 1 plus 3 by 2. Therefore r is equal to 10 upon 2 plus 3 by 2. So r is equal to 10 times 2 by 5. What is the value of r? 4. Very good. अब तो प्रॉब्लम हो गया. r minus 1 will become 3. Therefore 3 less than equal to r less than equal to 4. How many terms have we got? 2 terms. अब देखो तुम लोगों को मैजिक्स बताता है. पावर क्या है? कितना मिडल टर्म रहेगा? NGT is nothing but finding the middle term. देखो यहाँ कहाँ पे है देखो. So if you find the middle term, this is the answer that you are going to get. Has everybody understood this? Numerically greatest term is nothing but your middle term. So when you're finding NGT, you can find by any method. अब इसको फॉर्म सॉल्व करने कुछ नहीं करना है. So I will write basically r का वैल्यू 3 ले लेंगे. So t3 plus 1 is equal to n c r a raised to n minus r into b raised to r, and t4 plus 1 is equal to 9c4 3 raised to 9 minus 4 minus 2x raised to 4. These are your terms. Has everybody understood this? तो न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. बट अब देखो इसमें ना a दिया था, b दिया था, n दिया था, r we are finding out. Let's take a sum जहाँ पे they are asking like this. Find value of n for which the sixth term is NGT. In 3 by x, 3 by 2 plus x by 3 the whole raised to n, where x is equal to half. बोलो
दे हैव सेड फाइंड n फॉर विच द सिक्स्थ टर्म इज NGT. अब ये भी दिया है सिक्स्थ टर्म इज NGT. If I tell you sixth term is NGT, what do you understand by that? R is 5. R plus 1 is 6. If R plus 1 is 6, then R becomes 5. Do I have A? What is A? 3/2. Very good. What is B? Plus x by 3. Which is x by 3? Very good. Plus C na plus है. What is x का value? Half. सिक्स्थ टर्म भी दिया. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें पता है क्या? A दिया है, B दिया है, R दिया है. मेरे पास n नहीं है. सो नाउ वी हैव टू मेक श्योर. मैंने बोला था देखो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4 में से 3 टर्म दिया रहेगा, 3 चीज़ दिया रहेगा. सो आई विल राइट लाइक दिस. देखो ध्यान से, आई विल राइट दैट n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए बी माइनस 1 इज लेस देन. देखो फॉर्मूला तो पता है, एक में अगर नॉर्मल लिया रहेगा, दूसरे में कुछ नहीं रहेगा, तो लेस देन. अभी लेस देन किससे रहेगा? अगर मैंने इसको लेस देन r ले लिया, एंड ये क्या रहेगा? n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए. ये मेरा r टर्म है, ये से एक लेस रहेगा, तो दिस इज tr प्लस 1, दिस इज tr एंड दिस इज tr प्लस 2. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अगर मैंने इसको tr ले लिया, ये हो जाएगा tr माइनस 1, ये हो जाएगा tr प्लस 1. सो मुझे पता है दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स. अब मुझे r भी दिया है. व्हाट इज r? 5, क्योंकि r प्लस 1 इज 6. A दिया है, B दिया है, R दिया है, N नहीं दिया. तो क्या करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला. अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स राइट इट हियर. देखो ध्यान से, आई विल राइट n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए बी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू r. अगर तुमने ये फाइंड आउट कर लिया ना, तो ये भी सॉल्व हो रहा है पैरेलली. तो पहले ना इसको फाइंड आउट करते हैं, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए बी. अब n नहीं है तो n को हम लोग n ही लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस. गाइस कैन यू टेल मी व्हाट इज a का वैल्यू? a का वैल्यू 3/2. एक काम करो, ऐसा लिखो 3/2 डिवाइडेड बाय, कैन यू टेल मी व्हाट इज b का वैल्यू? x by 3. x का वैल्यू क्या है? तो कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज, ऐसे लिखो 1/6 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे ना दे हैव सेड दैट r प्लस 1 इज इक्वल टू 6. तो r का वैल्यू क्या रहेगा गाइस? 5. तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 टाइम्स 6 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5. ये क्या हो जाएगा बताओ? 9. पक्का? ये देखो ना निकल जाएगा. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10. सो n प्लस 1 अपॉन 10 इज लेस देन इक्वल टू 6. तो n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 60. तो n इज लेस देन इक्वल टू 59. अरे बाप रे, n लेस देन इक्वल टू 59. अब ये पार्ट सॉल्व करते हैं. r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए बी. अब इसका पूरा वैल्यू देखो ना, यहाँ तक देखो. व्हाट इज दिस? n प्लस 1. तो r कितना है? 5 इज लेस देन n प्लस 1 अपॉन, बोलो क्या रहेगा? n प्लस 1 अपॉन 10. सो 50 इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1. n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50. तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर देयर? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ 10 आर देयर? 11. अगर तुमने 10 बोला तो आंसर इज रॉन्ग. बेसिक इसमें भी रॉन्ग कर रहे हैं. 49 to 59 आर हाउ मेनी वैल्यूज? 49 इंक्लूडेड रहेगा ना, बस. तो यू विल हैव 11 वैल्यूज. तो आई विल राइट दैट n बिलोंग्स टू 49 to 59. ये है मेरा वैल्यू. सो कोई बोलेगा n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 49 से 59 तक कोई भी वैल्यू रह सकता है. सो दिस इज़ वेयर
A is being given, B is given, R is given, X is given, everything is given. We had to find the value of n. Anybody has any doubts here? सब लोगों को समझा. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में दे कैन आस्क यू बेसिकली एनी क्वेश्चन कि तुम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब लास्ट टाइम हम लोग ने एक सम लिया था. नेक्स्ट चलो, इफ ए बी सी आर इन ए पी, चलो थोड़ा सीक्वेंस रिवाइज कर लेंगे. देन the sum of coefficient, then the sum of coefficient 1 plus ax square minus 2bx plus c raised to 2018 is question mark. ठीक है, बोलो. ए बी सी दिया है ए पी में. आई होप एवरी वन नोज व्हाट इज ए पी. अच्छा, ए पी का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वाह, स्मार्ट किड्स. बोलो क्या करेंगे? ऑब्वियस हिंट है क्वेश्चन में, ऑब्वियस हिंट दिया. विल पुट एक्स का वैल्यू इज 1. क्या बात है. अगर मैंने एक्स का वैल्यू 1 डाल दिया तो व्हाट विल दिस बिकम? 1 प्लस ए माइनस 2b प्लस सी रेस टू 2018. अरे अब इसके बाद क्या करेंगे? दे हैव सेड ए बी सी आर इन ए पी, तो आई विल राइट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 0. क्यों? बिकॉज 2b इज नथिंग बट ए प्लस सी. तो ए प्लस सी की जगह कहना है पुट 2b. तो 1 प्लस 2b माइनस 2b रेस टू 2018, ये क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज द आंसर? 1. दैट्स इट. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी ऑलरेडी न्यू. कंबाइनिंग बोथ, दिस इज हाउ यू सॉल्व व्हेन यू गेट सम ऑफ कोएफिशिएंट्स. नाउ look at this. Let's start with a plus x the whole raised to n. ठीक है, a plus x the whole raised to n. Okay. अच्छा, इसके पहले I had to, sorry I forgot एक क्वेश्चन था. If a cube plus b raised to 6 is equal to 2, then maximum value of the term independent of x in ax raised to 1 by 3 plus bx raised to minus 1 by 6 raised to 9 is. Now I'm going to ask you 2 questions. इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट यूज कर. टेल मी एनी. सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई भी एक चैप्टर बताओ जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. 2 चैप्टर का, एक तो पता है बाइनोमियल का है, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा चैप्टर है? बोलो, कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्या है ये? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है क्या? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैंने कहाँ पढ़ा है? बोलो. मैक्सिमम वैल्यू हमने लास्ट टाइम कहाँ से कहाँ पे किया था? बोलो. मैक्सिमम कब निकालते हैं और मिनिमम कब निकालते हैं?
ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं किया था, मैक्स ऑफ अ सम ए क्यूब बी रेज टू 4 सी रेज टू 6 का मैक्सिमम वैल्यू निकालने का है, लेस देन इक्वल टू ए अपॉन 3 प्लस ए अपॉन 3 प्लस ए अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा वैल्यू दिया रहता था ए क्यूब बी स्क्वायर सी रेज टू 4, तो ए अपॉन 3 प्लस ए अपॉन 3 प्लस ए अपॉन 3 प्लस बी, भूल गए ए एम जी एम कौन से चैप्टर में? वही तो बोला मैंने। द फर्स्ट थिंग इफ़ यू यूर मैक्सिमम वैल्यू यू आर सपोज टू रिकलेक्ट ऑल द चैप्टर्स जिसमें मैक्सिमम वैल्यू था, and maximum value was a very important topic. So this is obviously binomial term independent of x. बोलो how do we proceed, how can we solve term independent of x? बताओ। कोई शॉर्टकट दिया था लास्ट लेक्चर में? मैंने क्या दिया था शॉर्टकट? बोलो। r इज इक्वल टू एन अल्फ़ा माइनस एम अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब अच्छे से का मतलब क्या होता है देखो, if I have to write it nicely, okay, if I have to write it nicely, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे कि I will write a raised to ax raised to 1/3 plus b upon x raised to 1/6 the whole raised to 9. Obviously m का value 0. What is the formula? n alpha minus m upon alpha plus beta. What is n? 9. What is alpha? 1/3 minus m upon what is alpha? Plus 1/6. तो r will become 3 upon कितना हो जाएगा? 1/2. श्योर? 1/2 लिख दो क्या? 1/2 हो जाएगा। तो r कितना हो जाएगा? 6 की 9? 9 बोला कोई तो? 9 6 बोलो। अरे 2 + 1 3 हो जाएगा ना। 3/6 विल बिकम 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो r विल बिकम 6। ठीक है, r का वैल्यू 6 हो गया। तो अब जनरल टर्म अगर मैंने लिखा तो TR + 1 इज इक्वल टू NCR A raised to n minus R B raised to R. So T6 + 1 is equal to 9C6. Guys, what is A? What is A? अरे A क्या है? X ना, but we are talking about term independent of X. Term independent of X में X आएगा क्या? नहीं आएगा। तो A raised to 9 minus 6. What is B? B raised to 6 कितना हो जाएगा? 9C6 A क्यूब B raised to 6। अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, वो एडिशन है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एडिशन। क्या है एम जी एम का रिलेशन? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नॉट बैड, वेरी नाइस। अब क्या करो? बोलो। अगर ये आ गए तो अभी तो आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, 2 टर्म्स तो बताओ जिसका मीन निकालना है। व्हाट आर द 2 टर्म्स? ए एंड बी। ए एंड बी की तरह दोनों जगह देखो ना क्या है 2 टर्म्स। तो उसका अरिथमेटिक मीन कैसे लिखेंगे? ए क्यूब प्लस अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? ए क्यूब बी रेज टू 6। दिस इज करेक्ट? नो, क्यों? दिस इज करेक्ट। 9 क्या समझा नहीं? ये बराबर है, ये रॉन्ग नहीं है। तुम लोग क्या कॉन्स्टेंट कैसे लेगा इसमें? क्वेश्चन क्या पूछे है?
मैक्स वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये तो है मेरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बस इसका वैल्यू मेरे पास है ही नहीं ना, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू है क्या अपने पास, किस ए क्यूब प्लस बी रेज टू 6 का कुछ वैल्यू है क्या मेरे पास, क्या है वैल्यू 2, ओके, एनीथिंग एल्स, बोलो। ए क्यूब बी रेज टू 6 लेस देन इक्वल टू 1, समझा नहीं मेरे को, 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो क्या, सो 2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी रेज टू 6, ये 1 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कैन आई से दैट ए क्यूब बी रेज टू 6 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, ए क्यूब बी रेज टू 6 का विल बी 1 हो गया। अब ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट इज द आंसर, 9C6, दैट्स द आंसर। And in back-to-back two sums, we have used concepts of 2 different chapters. Now these are the sums that will come in your entrances. कि तुमको मैक्स वैल्यू जैसे आया तो चमकना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। And it's very evident that max value for the next 1 year also, whenever you're solving any kind of sum, you have to understand that arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Arithmetic mean मतलब sum of two sums average greater than equal to the root of that. The arithmetic mean is something plus something by 2, a plus b by 2, and geometric mean is root of ab. And this is the relation. Arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Has everybody understood this? So the answer is the answer is 9C6. Has everybody understood this? So all the sums that you did, those are not your normal sums. देखो NGT तुम लोग middle term से भी solve कर सकते हो, not a problem. NGT just reduces your time. It might take same time for everybody, that's not a problem. तुमको जो भी comfortable रहेगा. अगर NGT बोला है तो I always prefer the students using NGT form, that becomes easier. उसके last 2 sums, this sum and the previous sum, APGP का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, पर यहाँ पे एक वर्ड देखा था सम ऑफ कोएफिशिएंट। अगर फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे सम ऑफ कोएफिशिएंट में बोला है जस्ट पुट एक्स का वैल्यू एज 1। इन दिस सम वी हैव यूज्ड अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, द कोर ऑफ द चैप्टर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नाउ अब देखो, अब आई स्टार्ट विथ a प्लस एक्स द होल रेज टू n, जस्ट एक्सपांड करता है। वी नो हाउ द एक्सपांशन इज a प्लस बी द होल रेज टू n, इसको मैंने a प्लस एक्स द होल रेज टू n लिया। अब देखो ध्यान से, सुना ऐसे करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेता है, a प्लस एक्स द होल रेज टू n, विल एक्सपांड इट नॉर्मली, NC0 पहले टर्म का हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म का लोएस्ट पावर, फिर यहाँ पे आ गया प्लस NC1 फर्स्ट टर्म का पावर 1 से रिड्यूस, सेकेंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज, प्लस NC2 फर्स्ट टर्म का पावर 1 और x स्क्वायर, प्लस NC3 a रेज टू n माइनस 3 x क्यूब, एंड ये चलता रहेगा। ठीक है, आई हैव रिटन 4 टर्म्स। अब ये लिख दिया। अब अ लॉट ऑफ टाइम्स ना, इफ आई राइट NC0 के जगह इफ आई राइट C0, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो अंडरस्टूड है। C0 इज नथिंग बट NC0, C1 इज नथिंग बट NC1, C2 इज नथिंग बट NC2. So if I write C0, C1, C2, that's fine. But this is not the reason why we are writing this. अब देखो ध्यान से, this is my first term, जो सबसे पहला टर्म लिखा था, that is my first term. इसको मैंने ले लिया T1, ये है मेरा सेकेंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म, और ये है मेरा फोर्थ टर्म। वैसा मेरा nth टर्म तक जाएगा। Now, next I will write a minus x the whole raised to n. सेम ही आएगा, everything will be same. देखो ध्यान से,
everything will be the same, सिर्फ एक स्मॉल चेंज रहेगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट स्मॉल चेंज? ये देखो, ये माइनस रहेगा. ऑब्वियसली दिस इज T1, obviously this is T2, obviously this is T3, T4, and last term is going to be Tn. Now can anyone tell me, ये मैंने लिख दिया, what will be the answer for a plus x raised to n plus a minus x raised to n? क्या रहेगा? What are the alternate positive terms? Twice the alternate positive terms. T1, T3. Exactly. तो देखो, मैं बोलूँगा कि T1 प्लस T3 प्लस T5 को सब ऑड टर्म्स को मैं A लूँगा, एंड T2 प्लस T4 प्लस T6 को सब इवन टर्म्स को आई विल टेक इट एज B, क्योंकि इतना नहीं लिखेंगे. सो कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या रहेगा? 2. सो इट विल बिकम लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ, देखो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बराबर. क्या बचा? T1 T3 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स. सो आई विल राइट T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब इतना लिखने से अच्छा आई विल राइट 2a, जहाँ पर मैंने डिफाइन किया है दैट a इज़ नथिंग बट द सम of the odd position of the terms. देखो, T1 is first position, T3 is third position, T5 is fifth position, T7 is seventh position, T9 is ninth position. But अगर मैंने second part लिया कि a plus x raised to n minus a minus x raised to n, क्या मुझे कोई बताएगा twice of क्या रहेगा यहाँ पे? T2 plus T4 plus dot dot रहेगा, which will become equal to 2. How many of you have not understood this? तो आगे जाके whenever we have these kind of sums, मुझे पता चलना है कि अच्छा इसका आंसर 2 है, मतलब कुछ नहीं करना है, just have to write twice of, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या आएगा, find the number of terms. Find the number of terms में तुम लोगों को सिर्फ याद रखना कि A we always take it as odd number of terms, odd position of the terms, B will always taken as, we have always taken as B as even position of the terms. तो यह है odd position of the terms, यह है even position of the terms. Has everybody understood this? अब a प्लस एक्स और प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं बट नॉट प्रीफर्ड. आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. A plus x the whole raised to n, a minus x the whole raised to n. What according to you would be the answer for a plus x raised to n into a minus x raised to n? बोलो. A square plus b square plus 2ab is incorrect. The answer will be a square minus b square. Power same ले लो, a square minus b square. Has everybody understood this? So it will be a square minus b square. Obviously a is all your odd number of terms, odd position of the terms, and b is all your even position of terms. Chalo, D question. Question A, these are all the remarks that you have to understand. A plus x raised to 2n into plus a minus x raised to 2n. बोलो. A plus x raised to 2n plus a minus x raised to 2n. Tell me. A plus x raised to 2n, a minus x raised to 2n. ट्राई करो ना, इनका वैल्यू 1 डाल के देखो क्या होता है. सिंपल, 2x स्क्वायर. आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. बोलो. a plus x raised to 2n plus a minus x raised to 2n.
2a² na²। अरे n का वैल्यू 1 डालो, एक्सपांड करो, मेरे को बताओ ना क्या आता है। 2ab आएगा, बीच में प्लस है ना, a² प्लस b²। अरे सोचो ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर को अगर ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 2a² प्लस 2b²। तो कैसे लिखेंगे फिर? द आंसर you will get 2a² plus 2x², yes, no, which is nothing but twice of a² plus b²। Has everybody understood this? अरे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा ना, मिडिल टर्म कैंसिल होएगा। नहीं समझा? a प्लस बी द होल स्क्वायर आता है सब लोग को। व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2ab। व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर? a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या कट होगा? 2ab कट हो जाएगा, क्या बचा? a² प्लस x²। बट यहाँ पे obviously the odd number of terms and even number of terms, so this is the answer, you'll get the answer as twice of a² plus b²। चलो, and the last part, अब देखो ये इजी पार्ट है। अगर इन दोनों के बीच में मैंने डाल दिया है माइनस, सेम चीज, a प्लस एक्स रेज टू 2n माइनस a माइनस एक्स रेज टू 2n, क्या हो जाएगा? 2 टाइम b, 2 टाइम्स 4ab, इट विल बिकम 4ab। ऑब्वियसली ना, यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो जाएगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, अदरवाइज एग्जाम में तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एंड तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो आई गिव यू अ क्वेश्चन, अ बेसिक क्वेश्चन। चलो तुम लोग बताओगे इसका हाईएस्ट डिग्री इन x प्लस रूट ऑफ x³ माइनस 1 द होल रेज टू 5 प्लस x प्लस x माइनस रूट ऑफ x³ माइनस 1 द होल रेज टू 5। सबसे बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहला चलो हाईएस्ट डिग्री छोड़ दो, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बताओ क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? 2a। a मतलब ऑड पोजीशन ऑफ टर्म की इवन पोजीशन ऑफ टर्म? ऑड पोजीशन। तो कोई बताएगा इसका आंसर क्या रहेगा? 2 ऑफ व्हाट आएगा? 2 ऑफ व्हाट? ऑड पोजीशन क्या क्या है बोला ना। अरे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्या आएगा? T1 प्लस T3 प्लस क्यों नहीं? T7 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा T7? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 6 है, तो 7 नहीं आएगा। पक्का ना? श्योर? T1 इज NC0 NC0। T5 will become 4 NC5। अरे दिस इज द फर्स्ट टर्म मतलब r इज 0, दिस इज द थर्ड टर्म मतलब r इज 2, दिस इज द फिफ्थ टर्म मतलब r इज 4। r कहाँ तक जा रहा है? r कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। तो T7 आएगा क्या? क्योंकि T7 मतलब r का वैल्यू क्या रहेगा? विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा r का? 5, बिकॉज n और r का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। चलो गुड। अब बताओ हाउ डू आई राइट दिस। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं T1 का मतलब होता है r इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू 0 मतलब हाउ डू आई राइट? n क्या है बताओ? 5c0 फर्स्ट टर्म, x रेज टू 5 माइनस 0 सेकेंड टर्म, रूट ऑफ x³ माइनस 1 रेज टू 0। लवली। T3 बोलो क्या रहेगा? r इज 3 ना? 2। वेरी गुड। r इज 2। ठीक है, कॉमन मिस्टेक गाइस। 5c2 x रेज टू 5 माइनस 2 रूट ऑफ
एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू टू एंड नेक्स्ट t5 इज आर एस क्या हो जाएगा 5c4 x रेज टू 5 माइनस 4 रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू 4 क्या पूछा है हाईएस्ट डिग्री। चलो डायरेक्ट बताओ इसमें x का डिग्री क्या रहेगा x का डिग्री क्या रहेगा डिग्री पक्का क्यों ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री विल बी 5 here हाईएस्ट डिग्री 3 6 कैसे ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा व्हाट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज टू 9 की 6 तो हाईएस्ट डिग्री विल बी 6। अब इस पे फोकस करेंगे इसका क्या रहेगा सिंप्लीफिकेशन एक्स रेज टू 5 एक्स रेज टू 1 और इसका एक्स रेज टू 6 कैसे एक्स स्क्वायर और ये रूट निकल जाएगा और एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या रहेगा एक्स रेज टू 6 इंटू एक्स क्या रहेगा एक्स रेज टू 7 सो या हाईएस्ट डिग्री तो दिस इज योर हाईएस्ट डिग्री। सेकेंड ऑप्शन सबको एक्सपांड करो सबको ऐड करो सबट्रैक्ट करो ये आंसर आ जाएगा विच विल टेक ट्वाइस और 3 times द टाइम दैट यू विल रिक्वायर फॉर दिस इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t3 प्लस t5 ये याद रखना है अदरवाइज तुमको वही ऐड करना है वही सबट्रैक्ट करना है कैट कट करोगे फिर ये लिखोगे फिर ट्वाइस लिखोगे। मुझे पूछा है हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट नहीं पूछा है 2 है 1 है 5 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे सिर्फ x का डिग्री चाहिए हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वैल्यू ऑफ x ये मिल गया सॉरी चलो इसका आंसर बताएंगे रूट 2 प्लस 1 द होल रेज टू 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 द होल रेज टू 6 इंटीजर टाइप क्वेश्चन इसका आंसर चाहिए हाउ डू आई राइट दिस अभी जस्ट जो किया वैसे ही मेथड से करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ व्हाट t1 प्लस t2 t3 प्लस t5 प्लस t6 t7 क्यों t7 t7 मतलब वैल्यू ऑफ r इज 6 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है सी t0 का जीरो टर्म नहीं होता है फर्स्ट टर्म मतलब t1 t3 t5 t7 हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। चलो अब डायरेक्ट बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा ट्वाइस बोलो क्या लिखेंगे n क्या है n क्या है 11th स्टैंडर्ड n क्या है 6 c व्हाट 0 फर्स्ट टर्म रूट 2 6 यहाँ पे देखो ये r है मेरा रूट 2 रेज टू 6 एंड 1 रेज टू 0 प्लस नेक्स्ट 6c2 रूट 2 रेज टू देखो 2 कम करो 4 एंड 2 ऐड करो 1 रेज टू 2 प्लस 6c4 रूट 2 स्क्वायर 1 रेज टू 4 प्लस 6c6 रूट 2 रेज टू 0 1 रेज टू 6। अब देखो एडवांटेज क्या है 1 है आधा बैटल वी हैव 1 बोलो 6c0 1 रूट 2 रेज टू 6 6c2 रूट 2 रेज टू 4 2 की 4 प्लस 6c4 15 पक्का श्योर ना 2 प्लस बताओ टेल मी 99 क्या रहेगा आंसर 198। सेकेंड मेथड इज़ अ लॉन्ग मेथड दोनों को ऐड करो ट्वाइस करो यही आएगा तो यू मिस आउट एक्चुअली यू अवॉइड 3-4 स्टेप्स जो भी कैंसिलेशन रहेगा बिकॉज यू नो दैट सम
व्हेन यू ऐड या सबट्रैक्ट, तो अगर ऐड करेंगे तो T1 T3 T5 T7 अप टिल ऑड द ऑड पोजीशन ऑफ द टर्म्स, एंड अगर इसमें बीच में गलती से सबट्रैक्ट रहता तो इवन पोजीशन ऑफ द टर्म्स. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट चलो, प्रूव दैट 101 raised to 50 plus, sorry, is greater than 100 raised to 50 plus 99 raised to 50. छोटे टर्म्स ले ही नहीं रहे. 100 raised to 50, 101 raised to 50 and for 99 raised to 50. You can add 1 as 100 plus 1. 100 plus 1 and 100 as 100 plus 0 and 99 as 100 minus 1. तो प्रूफ क्या करना? टेक सिमिलर, you have to make sure that it is something plus something and something minus something. You सब एकदम क्रांतिकारी जैसे सब कुछ ही चेंज करना. You have to understand कि what will give me twice of something. T1 T3 T5 हो सकता है, T4 T2 कुछ भी हो सकता है. उसके लिए देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. 101 raised to 50 minus 99 raised to 50 is greater than 100 raised to 50. चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया. अब लेफ्ट हैंड साइड में पैटर्न सही बैठ रहा है. लेट अस टेल यू हाउ. कैन आई राइट 101 as 100 plus 1 and how can I write 99 as? हो गया. अब ये मत सोचो कि क्या प्रूफ करना है, भूल जाओ. फोकस ऑन दिस, फॉरगेट प्रूफ दैट ऑल्सो. ये तुम लोगों ने सही पकड़ा है. अब देखो मैं क्या करूँगा. आई विल राइट दिस एज 100 plus 1 raised to 50 minus 100 minus 1 raised to 50. ठीक है, यही करना है. 100 plus 1 raised to 50, 100 minus 1 raised to 50. क्या रहेगा ये? Twice of A. B. Guys, this is twice of B. आपको ये बताएगा what is B? T2 plus T4 plus T6. अब मैं पूछूंगा लास्ट टर्म क्या रहेगा? T48. T51. 50. आराम से सोचो. तुम लोगों ने E1 बोला है. E1 बोला है. E1 मतलब ऑब्वियसली लास्ट टर्म भी आएगा. व्हाट इज योर लास्ट टर्म गोइंग टू बी? विल इट बी T50 और T51? पक्का? T50 की T51? 49. T49. R is 49. So चलो T50. एक क्वेश्चन. A प्लस बी द होल रेज टू 6 में होल क्यूब ले लेते हैं. आई विल हैव T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4. बराबर ना? E1 ही लिए. एंड A माइनस बी द होल क्यूब में T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4. बराबर. अब अगर मैंने दोनों को माइनस किया तो ट्वाइस ऑफ क्या बचेगा गाइस? T2 प्लस T4. तो लास्ट टाइम बचा कि नहीं बचा? तो आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन. लास्ट क्या आएगा? T51. T49 कैसे आएगा? T49 मतलब R का वैल्यू क्या रहेगा? 48. तो 48 मतलब मेरा हाईएस्ट R का वैल्यू क्या रहेगा? 50 रहेगा ना. मेरा हाईएस्ट R का वैल्यू क्या रहेगा? 50. व्हाट इज द लास्ट टर्म? 50C50 रहेगा, राइट? व्हाट इज 50C50? N and R विल बी सेम. तो N भी क्या रहेगा? 50 रहेगा और R भी क्या रहेगा? 50. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? नहीं समझा? कितने लोगों ने नहीं समझा? बोलना बेटा. इसका लास्ट टर्म क्या रहेगा? 50C50. N क्या है? R क्या है?
50. R50 मतलब वो कौन सा टर्म है? दैट इज द 51st टर्म. नहीं समझा? क्यों 51st टर्म? बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम T1. वी स्टार्ट फ्रॉम T1. कहाँ से स्टार्ट किया? R इज 0 मतलब T1. वी डोंट स्टार्ट विथ 0 टर्म. तुम लोग जब रनिंग रेस भागते हैं तो बोले अरे ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट है, ऐसा होता है क्या? कहाँ से आता है? यू स्टार्ट विद द, कोई फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट देखिए उसको 0 पोजीशन मिलता है, उसको मिलता है फर्स्ट पोजीशन. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन. सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में R का वैल्यू क्या है? 0. R will always start from 0 in an expansion. Has everybody understood this? A plus b the whole square, maybe it starts with 2c0. So position of R will be 0, but that will be which position? That will be which position? The first position. Has everybody understood this? Now, देखो ध्यान से. Look at this. ये हो गया, चलो ठीक है, बट ये लिखेंगे कैसे? B will be even terms. तो ये even ही है ना? T4 50 है, T2 T4 50th, 49th पोजीशन, 50th पोजीशन. एक मिनट, रेस टू 50 है ना? 50 पोजीशन है, 50th. T2 T4 T6 अप टिल T50th. रेस टू 50, हाँ T50th रहेगा, T50 फर्स्ट नहीं रहेगा, T50th रहेगा. A प्लस बी द होल क्यूब. अच्छा यहाँ पे A प्लस बी द होल स्क्वायर ले लेते हैं, ये इवन ऑर्डर ले लेते हैं. A प्लस बी द होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो T1 प्लस T3 हो जाएगा. देखो, विल टेक एन एग्जाम्पल. सो अगर मैंने ऐसे ले लिया a plus b the whole raised to 4, which will become T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5, and a minus b the whole raised to 4 will become T2 minus T1 minus T2 plus T3 minus T4 plus T5. अब अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दिस विल बिकम, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो आई गेट ट्वाइस ऑफ T2 प्लस T4. तो एक टर्म कम रहेगा. सो T2, ऑल द इवन पोजिशन ऑफ द टर्म्स, नॉट द ऑड टर्म्स, ऑल द इवन पोजिशन ऑफ टर्म विल बिकम T2 प्लस T4 प्लस T6. अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट विल बी R? R विल बी 49, बिकॉज ये 50th पोजिशन है. पोजिशन विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0, पोजिशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. अब चलो ये लिख लिया, बट हमको कुछ और प्रूफ करना है. हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? लेट्स स्टार्ट विथ T2 एंड T4. चलो ये सब मत छोड़ो, ये सब छोड़ दो, मुझे T2 को एक्सपांड करना है. सो माई क्वेश्चन इज, फॉर पोजिशन ऑफ T2 कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज n का वैल्यू? n चेंज होगा ही नहीं. व्हाट इज T2 पे R का वैल्यू? 1. व्हाट इज A? What is A? 100. What is B? 1. B is 1. अब देखो ध्यान से, N C R, A raised to N minus R. What is B? 1 raised to 1. बराबर. We are not going to solve 100 raised to 50. Obviously 100 raised to 50 सॉल्व करना थोड़ा, 100 raised to 49 थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा. एक और लिख लेते हैं, प्लस. अब चलो एक ही करते हैं पहला. कैन यू टेल मी व्हाट इज एनीथिंग C1? एनीथिंग. एनीथिंग C1 इज एनीथिंग. 10 C1 is 10, 100 C1 is 100, 1000 C1 is 1000, n C1 is n. So what is 50 C1 guys? 50 times what? 100 raised to 49 plus. अब why am I not expanding this? There is a reason for this. देखो ध्यान से, if I open the bracket, if I open this bracket,
Can if I open this bracket, can you tell me what will be the first term? 100 raised to 50. The first term will become 100 raised to 50 plus there are so many terms साथ में. ये तो एक ही टर्म है. तो कैन आई से दैट दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन 100 raised to 50? क्यों? बिकॉज दिस का कॉम्बिनेशन 100 raised to 50 तो आ गया उसके आंसर में, बट बहुत सारे और टर्म्स भी रहेंगे. सो आई कैन फाइनली से दैट देयरफॉर 100 plus 1 raised to 50 minus 100 minus 1 raised to 50 is greater than 100 raised to 50. Therefore, 101 raised to 50 is greater than 100 raised to 50 plus 99 raised to 50. How many of you have not understood this? This part. ये देखो मैंने इसके बाद क्यों ऐसा लिखा, कोई बताएगा मेरे को? Because this is one of the terms. But इसके बाद बहुत सारे टर्म्स आएंगे. ऑब्वियसली वो जितने भी टर्म्स रहेंगे वो नेगेटिव तो रहेंगे, सब पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे. अब इसका वैल्यू अगर 1 भी रहेगा 1 तो भी ये इससे बड़ा रहेगा. तो द एंटायर LHS विल बी ग्रेटर देन RHS बिकॉज ये RHS तो इसमें आ गया बट उसके साथ जो भी वैल्यूज़ हैं तो इट्स लाइक दिस कि A इज इक्वल टू B प्लस 1 तो ऑब्वियसली A इज ग्रेटर देन B. Has everybody understood this? So therefore we have proved that this is indeed greater. यही प्रूफ करना था that 101 is indeed greater than 100 raised to 50 plus 99 raised to 90. I repeat again. How many of you have not understood this? सब लोग को समझा ये? Anybody has any doubt? So देखो मैंने क्या किया है. What we have done is we tried to get a relation. A plus B the whole raised to n and A minus B the whole raised to n. ठीक है, चलो. Find the coefficient of x raised to 15 in 1 plus x raised to 15 plus 1 plus x raised to 16 plus 1 plus x raised to 17 plus dot 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 1 plus x raised to 30. अब देखो आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15. अब पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं. देखो ध्यान से देखो गाइस. देखो 1 प्लस एक्स रेज टू 15 में आई नो दैट द लास्ट टर्म विल बी x रेज टू 15. मतलब देखो अगर ऐसे लिखा तो NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r, मतलब दिस विल बिकम पावर क्या है मेरा 15 C 15 1 raised to 15 minus 15 and second term raised to 15. So can I say that this is basically nothing but x raised to 15. अच्छा इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? 1. देखो याद रखो 1. ये जो है ना इसका सेकेंड लास्ट टर्म का पावर क्या रहेगा? सेकेंड लास्ट टर्म x रेज टू 15. तो देखो n भी है और r भी है. जो r है वो मेरा x का पावर रहेगा, क्योंकि ना r है ना, r सबसे बलवान r रहता है इसमें. देखो यहाँ पे r 15 था, यहाँ पे 15 हो गया, x 15 हो गया. अब देखो यहाँ पे दिस विल बिकम NCR, वापस ये सेम ही आएगा. सो आई राइट 16C15 1 रेज टू 16 माइनस 15 इंटू क्या क्या आएगा x रेज टू 15. इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? 16C15. कोई बताएगा नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स रेज टू 17 क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? 17C15 1 रेज टू 17 माइनस 15 एक्स रेज टू 15 बराबर क्या रहेगा फिर? 17C15. चलो लास्ट वैल्यू क्या रहेगा फिर? लास्ट वैल्यू जो है ना 1 प्लस एक्स रेज टू 30 क्या रहेगा, बताओ डायरेक्ट बताओ. 30C15 1 रेज टू 30 माइनस 15 इंटू एक्स रेज टू 15 क्या हो जाएगा बताओ? 30C15. अब बीच में एडिशन है. सो इफ आई राइट हियर, लेट्स राइट इट हियर. 1 प्लस 16C15 प्लस 17C15
प्लस 18C15 प्लस डॉट डॉट प्लस 30C15, इसका आंसर क्या रहेगा? PNC बोलो। 16 प्लस 7 सबको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे? But you should have the formulas if you have same value of n and consecutive values of r. Do you have same value of n? Yes. And do you have consecutive values of r? वो भी नहीं है, तो उल्टा हो गया। उल्टा सेम वैल्यू ऑफ r एंड consecutive values of n है, तो हमको फॉर्मूला बनाना है। बोलो बोला बेटा। फॉर्मूला हम लोग अगर चेंज करते हैं NCR प्लस NCR प्लस 1 का फॉर्मूला है। हाँ, तो ये ना सेम वैल्यू ऑफ n एंड consecutive values of r, सेम वैल्यू ऑफ n इज द वैल्यू ऑफ n सेम, फॉर्मूला डिफाइन हो गया। एक चेंज है, वन स्मॉल चेंज। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट स्मॉल चेंज? वन स्मॉल चेंज। What would be that small change? बोलो। You need one small change. Can anyone tell me what would be that small change? 15C15 instead of 1. उससे क्या आएगा? फिर भी n अलग ही रहेगा। देखो ध्यान से, 16C16 प्लस 16C15 प्लस 17C15 plus 18C15 plus dot dot plus 30C15. Look at the first two terms. Do you have same value of n? Do you have consecutive values of r? So n increases by 1 and you take highest value of r. What is the highest value of r? Plus 17C15 plus 18C15 plus dot dot. Can you tell me what will this become? 18C16 plus 18C15 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में रहेगा 30C15। अब ये ऐड करते करते लास्ट का दो वैल्यूज क्या रहेगा? इट विल बिकम 30C16 प्लस 30C15 एंड व्हाट इज द आंसर? 31C16। वन स्मॉल चेंज। अबे ये तो वन ही है ना, तो 15C15 इज ऑल्सो वन एंड 16C16 इज ऑल्सो वन। अदरवाइज विल हैव टू सॉल्व दिस इंडिविजुअल। बहुत और ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, फिर तुमको ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। टू मच, इट इज़ टू मच ऑफ अ बर्डन टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट, अब देखो, अभी मुझे पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 50 in, find the coefficient of x raised to 50 in 1 plus x raised to 101 into 1 minus x plus x square raised to 100. ठीक है, दिस माइट लुक एज अ वेरी चैलेंजिंग सम। पावर हटा दो, 2 मिनट के लिए पावर हटा दो। डज इट रिसेंबल एनीथिंग? इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पावर हटा दो 2 मिनट के लिए, दोनों पावर हटा दो। इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट दैट वे। देखो मैं क्या लिखूँगा, मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स, इसको ले लिया 1 प्लस एक्स रेज टू 100 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 100 विच इज़ नथिंग बट 1 प्लस एक्स, और ये सबको साथ में लिखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 100 विच इज़ 1 प्लस एक्स एंड दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेज टू 100। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग को नहीं समझेगा? सब लोगों को समझा? प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम मुझे है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 50। अब टू मेक इट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 50, देखो मैं आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, आई नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 50। देखो मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, सिंस व्हेन आई ओपन दिस ब्रैकेट दिस विल बिकम 1 into 1 plus x the whole cube raised to 100
प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स द होल क्यूब रेज टू 100. ओके गाइस, कितने लोगों ने नहीं समझा ये? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अभी तक आई हैव नॉट यूज्ड अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. व्हाट आई हैव डन इज सिंप्लीफिकेशन. मैंने इसको सेपरेट कर दिया, दिस बिकेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और मैंने वापस ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 100. गाइस नाउ फोकस ऑन दिस. 1 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 100. अगर मैं इसको एक्सपांड करना चाहूँ, नॉर्मल एक्सपांशन, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन ओनली ऑन द सेकेंड टर्म, बिकॉज मुझे एक्स रेज टू 50 चाहिए. कैन यू टेल मी इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? एक्स क्यूब रेज टू 0. नेक्स्ट क्या रहेगा? एक्स क्यूब रेज टू 1. व्हाट इज एक्स क्यूब रेज टू 1? एक्स क्यूब. नेक्स्ट क्या रहेगा? एक्स क्यूब रेज टू 2, दैट इज एक्स रेज टू 6. अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? एक्स 9. नेक्स्ट 12. नेक्स्ट 15. 3 का टेबल आ रहा है. नाउ यू टेल मी, यू सेड दैट इट विल बी लाइक दिस. मैं लिख रहा हूँ, दिस विल कम दिस, नेक्स्ट टर्म विल बी दिस, नेक्स्ट टर्म विल बी दिस. कैन यू टेल मी एक्स क्यूब का क्लोजेस्ट पावर ऑफ 50 क्या रहेगा? एक्स क्यूब रेज टू व्हाट will give you closest before 50, which is 16. और नेक्स्ट क्या रहेगा? which will become x raised to 50. आ रहा है क्या? तो फर्स्ट ब्रैकेट में x raised to 50 आएगा ही नहीं, तो what will be the coefficient? 0. So I'll write since x raised to 50 does not occur, कोएफिशिएंट विल बी 0. ये फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं किया हम लोग ने. सेकंड ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट में मुझे पता चल गया x raised to 50 नहीं आएगा. देखो यार, पावर देख के मालूम पड़ जाएगा 3 और 50 कभी डिविजिबल नहीं रहेगा, तो 0 ही आएगा. बट नेक्स्ट 4 हो जाएगा. देखो 4 कैसे होएगा? द नेक्स्ट इज दिस x इंटू 1 प्लस एक्स द होल क्यूब रेज टू 100. तो मेरा फर्स्ट टर्म देखो क्या रहेगा? x इंटू एक्स क्यूब रेज टू 0. नेक्स्ट क्या रहेगा? x इंटू एक्स क्यूब रेज टू 1. नेक्स्ट क्या रहेगा? x इंटू एक्स क्यूब रेज टू स्क्वायर. यू टेल मी व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट पावर ऑफ 50? x इंटू व्हाट? अरे सेम ही तो रहेगा. x इंटू एक्स क्यूब रेज टू 16. क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब रेज टू 16? x रेज टू 49, एकदम क्लोज. तो कोई बताएगा नेक्स्ट क्या रहेगा? x इंटू एक्स क्यूब रेज टू 17. कितना हो जाएगा? x रेज टू, आ रहा है क्या x रेज टू 50? इसमें भी नहीं आ रहा है. सो देयरफॉर आई विल से, यहाँ पे भी विल राइट द सेम रीजन. देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी 0. इस टर्म में x रेज टू 50 आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैंने लाख ट्राई कर लिया. बिकॉज यहाँ पे क्यों, देखो ना, अगर ये 5 होता था, समझो यहाँ पे x स्क्वायर रहता था, x स्क्वायर, समझो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 100% आता था. अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो 100% आता था. मैं बोलता था हाँ ये टर्म आ सकता है, ये आ सकता है. कैसे करेंगे? आई विल शो यू. बट सबसे पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड कि x रेज टू 50 पूछा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बाइनोमियल थ्योरम इज सिंप्लीफिकेशन. इट इज़ नॉट सॉल्विंग दिस सम, इट इज सिंप्लीफिकेशन. तुम्हारा ये सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग हो गया, यू विल नेवर गेट द आंसर. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, हाउ एम आई सॉल्विंग दिस. इसमें अगर मैंने पावर निकाल दी तो इफ़ आई लुक एट इट, आई रियलाइज कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस b क्यूब. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स? जब अगर आप लोग ने एक ऐसा सम किया, नेक्स्ट say for example okay, find coefficient of x square in 1 minus x plus 2x square into x plus 1 upon x the whole raised to 10.
1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेज टू 10। अब तक ये तो ट्रिक मालूम पड़ जाएगा कि आई हैव टू सेपरेट इट। अब गाइज इफ आई सेपरेट इट कोई बताएगा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? 1 इंटू, अरे बोलो 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 10 एंड प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 10। एनीबडी हैज एनी डाउट्स? तो मैंने सेपरेट कर दिया। अब हम इंडिविजुअली सबको सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इंडिविजुअली। सबसे पहले है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 10 और मुझे बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत टाइम से जनरल फॉर्म ने यूज़ किया। अच्छा, यू कैन यूज़ इट बाय टर्म इंडिपेंडेंट ऑल्सो, वेयर m का वैल्यू विल बी 2। यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। इट इज़ ऑफ द फॉर्म x रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू बीटा। तो m का वैल्यू विल बी 2, तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दैट ऑल्सो। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ से प्यार से जनरल टर्म ले लेते हैं। ये फर्स्ट सबसे पहले ये लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 10। कोई बताएगा a क्या है गाइस? व्हाट इज a? x, p is 1 by x, n is 10। आराम से सॉल्व करेंगे। अब मैं करूँगा tr प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। एनीबडी हैज एनी डाउट्स? सब लोगों को समझाइए। तो एक काम करते हैं, सिंस वी आर सॉल्विंग इट नाइसली, इसको इसके नीचे डाल दिया, ठीक है। tr प्लस 1 हो गया। अब मैं करूँगा देयरफॉर tr प्लस 1 विल बिकम 10cr x रेज टू 10 माइनस 2r। एनीबडी हैज एनी डाउट्स? सब लोग समझा? अब ये 10 माइनस 2r को किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर से। तो क्या करूँगा बताओ तुम लोग, क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10 माइनस 2r, तो 2r इज इक्वल टू 8, r विल बिकम 4। तो अब मुझे ये समझ गया कि इसमें मेरा कोएफिशिएंट विल बिकम 10c4। तो देखो इसका आंसर आ गया, माय आंसर विल बिकम 10c4। चलो कोएफिशिएंट मिल गया, कांग्रेट्स, आई हैव गॉट द कोएफिशिएंट। अच्छा, कितने लोग को नहीं समझा ये? हाउ मेनी ऑफ यू नॉट अंडरस्टूड दिस? अब ये सेम यहाँ पे करते हैं। माइनस को बाहर ही रखो, x इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू 10। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, देखो ये तो सेम है, बट उसके आगे क्या है? एक एक्स्ट्रा x है। मतलब आई विल राइट x रेज टू 10 इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, बट आई विल राइट लाइक दिस, x इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस 2r। x रेज टू x है ना ये, तो x इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस 2r हो जाएगा ना। तो व्हाट विल, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा गाइस? x रेज टू, ये 1 है, अरे दिस इज x रेज टू 1 ना, तो दिस विल बिकम 11 माइनस 2r। सो आई विल राइट 10 इज इक्वल टू 11 माइनस 2r, 2r इज इक्वल टू 1, तो r कितना हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं? बिकॉज r हैज़ टू बी अ होल नंबर, r हैज़ टू बी अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। एनीबडी हैज एनी डाउट्स? एंड द लास्ट पार्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेज टू 10। तो बोलो एक्स रेज टू 10 को किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस 2r। तो दिस विल बिकम 10 इज इक्वल टू 12 माइनस 2r, तो 2r इज इक्वल टू 2, तो r कितना हो जाएगा? 1। आर यू श्योर? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? तो बताओ हम लोग अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये सॉरी एक्स रेज टू 10 नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स रेज टू 5 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 10 क्यों लिया यहाँ पे? सॉरी, so this will become square, 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 2r is equal to 9, तो ये 9 by 2 which is not possible, sorry guys। तो this will become my mistake, so 2 हो जाएगा। so 2r is equal to कितना हो जाएगा guys? 10।
तो r विल बिकम 5. इज इट पॉसिबल? अरे पॉसिबल है क्या? यस. तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बिकम 10c5. बट ये हमने सिर्फ इसका वैल्यू लिखा है. अब इसमें कोएफिशिएंट आएगा. फर्स्ट इसमें कुछ कोएफिशिएंट है क्या गाइस? फर्स्ट इसमें कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो माय फाइनल आंसर वुड बी, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर वुड बी 1 इंटू 10c4. सेकेंड वाले में -0 डाल देंगे, प्लस 2 इंटू 10c5. दिस इज योर आंसर. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज द कोएफिशिएंट. तो देखो हम लोग ने दो टाइप ऑफ सम लिया. जहाँ पे फर्स्ट, जहाँ पे हम लोग ने वी डिड नॉट गेट द कोएफिशिएंट, एंड सेकेंड वेयर वी जस्ट सॉल्व इट नॉर्मली. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो, स्टॉप फॉर टुडे.